Good Yes, evening, Chandan sir. With your permission, we good would like evening. to begin. Yeah, of course. Please begin. Good evening, everyone. My name is Amit, and I welcome you all for this day 7, being the last day of this capacity building program on MOOC and e-content. At the very outset, I would like to wish all of you a very happy Teachers' Day. And on this auspicious day, we have with us Mr. Chandan Kumar sir, uh, who is going to take today's session on role of producer in developing impactful MOOC programs. Sir is a producer at EMRC, Punjabi University, Patiala, specializing in TV production, film direction, film editing, and script writing. He holds both a bachelor's as well as a master's in multimedia from PTU, Jalandhar, and an MA in journalism and mass communication from Punjabi University. Additionally, he has completed a certificate course in multi-camera TV studio operation and production from FTII Pune. Sir has earned notable recognition, including the Certificate of Excellence from the Ministry of Information and Broadcasting and the National Film Development Corporation, Government of India. Sir has directed numerous impactful films addressing environmental, historical, as well as social issues. With a remarkable portfolio, he has produced almost 700 video programs and e-content as a producer and director for the Ministry of Education, Government of India. Sir has created 7 fresh MOOCs, and these MOOCs successfully ran on Swayam portal under his production and technical support. As an active participant in the field, he has served as a resource person at various workshops and seminars. In addition to his practical work, he has authored, presented, and published 9 insightful research papers at national as well as international educational conferences, further establishing his expertise and thought leadership in the field. Today, Sir is going to share his learning, his thoughts, and experiences on MOOC and e-content. And without any further delay, Sir, I would like to hand over this virtual floor to you. Over to you, Sir. Thank you. Thank you so much, sir. Uh, First of all, I would like to thanks Dr. Kaplesh, uh, Dr. Jasleen ma'am, and of course Amit Singhal, who gave me this wonderful opportunity to share my views with very renowned and teachers. So, first of all, I have to share my PPT with all of you. तो मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हम लोग दो मेजर प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो हम लोग देख रहे हैं, स्वयं बुक्स एंड स्वयं प्रभा। अभी ना मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। एक गांव में ना बहुत सारे पेड़ होते हैं जो आपस में एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो एक छोटा सा पेड़ रहता है सामने, तो बहुत उदास रहता है। तो उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा भी तो आज बर्थडे है, क्यों उदास हो? कोई जवाब नहीं देता। वो कहता कि यार ये अकेला है ना, इसलिए ये थोड़ा परेशान है। कोई बात नहीं, कहते तुम्हारा भाई भी तो आने वाला है। तो एक लड़का जो कुछ पेड़ लेके आता है और वहां वो लगा देता है। तो एक्चुअल में क्या है कि हर साल एक लड़का अपने बर्थडे पे ट्रीज वगैरह लगाता है। तो यहाँ पंजाब में अभी इन दिनों फ्लड्स चल रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जो बात है वो इम्पैक्टफुली आप सबको अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि मूक्स जो है, जो ई कंटेंट है, जो ई कंटेंट डेवलपमेंट है, ये बहुत मेजर रोल है। आजकल यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उसके बेस पे मोर देन 40% जो कोर्स है स्टूडेंट्स ने मूक्स के जरिए ही पढ़ना होता है। सो टीचर्स, अगर टीचर्स की बात करें कि पहले नॉर्मली जो ट्रेडिशनल टीचिंग पैडागोजी थी उसमें एक टीचर जाता था क्लास में,
अपना जो लेक्चर है वो डिलीवर करता था, तो क्लास से अपने चला जाता था। नॉर्मली क्या था कि जो फीडबैक सिस्टम था वो नहीं था। मुझे अच्छे से याद है जब जसलीन मैम का हमने एक मूक कोर्स जो हमने डिज़ाइन करना था, तो हम लोग ऐसे ही बैठे मेरे टेबल पे, तो मैम कहते कि मैं सोच रही हूँ कि हम लोग मूक कोर्स डिज़ाइन करें। स्वयं पोर्टल पे गए, सिलेबस निकाला, और सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर मुझे आज भी याद है। वो टाइटल का जो हमने सिलेबस निकाला वहीं, मतलब वैसे तो मैं जसलीन मैम को बहुत देर से जानता हूँ, तो उस समय मैम ने, मुझे लगता है कि विद इन 15 to 20 मिनट वो स्क्रिप्ट, इंट्रोडक्टरी स्क्रिप्ट लिखी, और हमने रिकॉर्ड करा, और मिनिस्ट्री के पोर्टल पे हमने वो सबमिट कर दिया। विद इन मंथ और टू लकीली हमें वो बुक मिल गया। सो अभी मतलब बड़ा प्राउडली मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वो जो मूक है वो मुझे लगता है कि 5-6 बार वो रीरन भी हो चुका है ना। तो वो मूक की क्वालिटी, उसकी वीडियोस, और भी बहुत से जो हम लोग ना डिस्कस करेंगे। मैं ना आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। तो मुझे लगता है ऑडियो नहीं आ रही ना। हाँ जी सर, वीडियो की नहीं आ रही है। हाँ, अभी वी कांट सी द एनीथिंग फाइल सर। इज ओपनिंग, द फाइल इज गेट ओपनिंग। हाँ जी। Okay. So the video is visible, but we can't hear anything. I think there is some problems in audio. And then sir, you can speak up your points on this and share the same with me or Paisa. We'll share in the group of the participants. This is something No we can do. No issues. नो प्रॉब्लम। सो हम लोग ना, मैं पर्सनली वो वीडियो इसलिए दिखाना चाह रहा था कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग ना, मतलब इस वर्कशॉप में पिछले 6 दिनों से मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, मूक के बारे में, ई कंटेंट के बारे में, एग्जीक्यूशन के बारे में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई। मैं कोशिश करूंगा कि उस पे मैं आज डिस्कस करूं। ठीक है। तो क्योंकि मूक की बात है तो बहुत सारी चीज़ें ना रिपीट भी होंगी, क्योंकि वो रेलेवेंस चीज़ें जो हैं वो रिपीट करनी ही पड़ेंगी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग पैडागोजी है उसमें नॉर्मली टीचर्स क्लास में जाते हैं, लर्नर जो क्लास लेते हैं और चले जाते हैं। जो फीडबैक सिस्टम है वो उस लेवल तक नहीं होता। तो जब हम लोग मूक स्पेशली आपने सबमिट करना होता है, तो आपको वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे वो चेक होता है ना। आपका कंटेंट चेक होता है, आपकी डिलीवरी चेक होती है, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक होती है, आपकी मतलब प्रेजेंटेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक कोर्स कोऑर्डिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। एडिशनली बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक होती हैं कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है ना। अ, अभी जब हम लोग डिजिटल टीचिंग के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ फिर मूक्स जो ई कंटेंट आता है, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास कंटेंट अच्छा होता है, अ, लेकिन रिसीवर भी रहते हैं, मतलब लर्नर भी अवेलेबल होते हैं।
लेकिन यहाँ स्पेशली एक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का रोल आता है, जिसपे नॉर्मली कैसे कंटेंट को क्रिएट करना होता है। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में हर इंसान चाहता है कि हर टीचर पर्सनली ये चाहता है कि वो अपना कंटेंट क्रिएट करें और बहुत से लोगों तक वो अपना कंटेंट लेके जाएं। लेकिन क्लासरूम टीचिंग में क्या रहता है? क्लासरूम टीचिंग में 20, 25, 50, 100, 200, 500, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में बात करें तो कई कई कोर्सेज ऐसे रहते हैं जिसमें मतलब 1 लाख से ऊपर भी स्टूडेंट इनरोल करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर्सनली जो प्रोड्यूसर्स का रोल अपने आप में आता है, जिसने ये डिसाइड करना होता है कि जो वो कंटेंट है वो कैसे मतलब टेलीकास्ट होगा, कैसे प्रिपेयर होगा, उसे कैसे अपलोड करना है, उसके वर्ड्स लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो अभी ना एक बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बोलते होंगे कि ऑनलाइन टीचिंग इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती। जो कंटेंट है, मुझे याद है कि जसलीन मैम और श्वेता मैम, ये दो ऐसे एक्सपर्ट हैं, जब हम लोग इनका शूट करते हैं, जब एडिटिंग पे जाते हैं, तो हमें लगता ही नहीं कि कोई ट्रांजिशन, एनिमेशन या फोटोग्राफ लगाने की ज़रूरत है ना। तो मैं वैसे चाहता था कि इनकी वीडियोस आप सबके साथ शेयर करूं। वो मैंने थोड़ी सी निकाल के भी रखी थी, लेकिन चलो एनी हाउ, कई बार टेक्निकल कोई एरर आ जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि मेरे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर समीर। वो ईएमआरसी पुणे के डायरेक्टर थे। उन्होंने ना एक कोर्स डिजाइन करा एनिमेशन पे। कोर्स डिजाइन करा, एक उन्होंने कोर्स डिजाइन करा एनिमेशन पे, और वो कोर्स स्वयं पोर्टल पे अपलोड कर दिया। एज इट इज बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सी क्वेरीज होती हैं। अभी जसलीन मैम का एक कोर्स चल रहा है, सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिस्कस करने के लिए पूछते हैं। क्वेश्चन कंटिन्यू अपने आते रहते हैं, मेल के जरिए, पर्सनली फोन पे, है ना। तो फर्स्ट असाइनमेंट जो सर ने डाली, एनिमेशन की फर्स्ट असाइनमेंट सर ने डाली कि आपको एक रोड बनाना है, उस पे कार बनानी है, कार चलती दिखानी है। तो रिप्लाई में एक मेल आता है ऐसे ही पूछने के लिए, क्या हम लोग पीछे पहाड़ बना सकते हैं, हट्स बना सकते हैं? तो प्रोफेसर समीर ने सोचा, यार मतलब अभी वहां तक पहुंचे नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्यूरियोसिटी जागी, उन्होंने बोला कि प्लीज आप जरूर बनाइए। तो जब असाइनमेंट आई, तो असाइनमेंट में मतलब जो उन्होंने पूछा था, वो सारी चीजें वहां उसमें अवेलेबल थी। असाइनमेंट बहुत अच्छी थी। तो पर्सनली सर ने उनसे फोन पे बात करी, तो पता चला कि जिस स्टूडेंट ने ज्वाइन करा था, जिस दिन ज्वाइन करा उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और लेग फ्रैक्चर हो गई, जिस कारण से वो बेड रेस्ट पे थे। तो उनके दो बच्चे थे, एक 10 साल का और एक 8 साल का। तो वो उसे लैपटॉप उठा के देते थे। लैपटॉप पे जब वो लेक्चर लेते थे, तो वो बच्चे भी साथ में वो लेक्चर सुनते थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो असाइनमेंट है, वो मेरे बच्चों ने बनाई है। ये दो बच्चे हैं जो मतलब जिन्होंने वो असाइनमेंट बनाई थी। मोहित 10 साल का था उस समय, और रोहांशी जो थी वो 8 साल की थी। जो कोर्स है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, वो तब इम्पैक्टफुल हो पाती है जब टीचर अपना 100% दे। बहुत से टीचर ना इसे एक पार्ट टाइम जॉब समझते हैं। हमारा रूटीन में, मुझे लगता है कि मैं ही एक लौता प्रोड्यूसर हूँ यहाँ, जिसने पटियाला, पौंडीचेरी, अपना और 2-3 सेंटर्स में काम करा है। क्योंकि एक जो वीडियो नहीं प्ले हो पाई ना, वो उसमें बहुत से एक्सपर्ट्स थे जो अलग अलग इंडिया के बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से थे, है ना। तो वो जो
बात कर रहे थे क्वालिटी कंटेंट की। क्वालिटी कंटेंट तब प्रोड्यूस हो पाता है जब एक एक्सपर्ट की 100% इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है। बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो टंग ट्विस्टर होते हैं, हर कोई अच्छे से ढंग से उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में हमें वो सारी चीजों को देखना होता है कि जो कंटेंट है वो जस्टिफाई हो पा रहा है। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि वो टाइटल सिलेबस बनाते हैं, सिलेबस के बाद टाइटल बनाते हैं। टाइटल मतलब विद इन 1500 1700 में अपना वो जो लेक्चर कंप्लीट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो टाइटल है वो जस्टिफाई उतने वर्ड्स में होता है, लेकिन मिनिस्ट्री की कुछ गाइडलाइन है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है, जिसे हमें देखना होता है कि मिनिमम वर्ड्स जो हैं वो कितने होने चाहिए। तो ई कंटेंट जब हम लोग मूव की बात करेंगे, यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं। क्वाड्रेंट 1 जो रहता है उसे उसमें ई ई टेक्स्ट होता है, है ना। क्वाड्रेंट 2 में सेल्फ लर्निंग ऑडियो वीडियोस रहते हैं। क्वाड्रेंट 3 में वेब रिसोर्सेज, ई लर्न मटेरियल, है ना, लर्न मोर, ई बुक, वो सब कुछ रहता है। और क्वाड्रेंट 4 में सेल्फ असेसमेंट। मुझे लगता है कि तीन जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इन पे बहुत डिटेल में पिछले 6 दिन में बात हो चुकी है। तो जो क्वाड्रेंट 2 है उस पे हम लोग आज थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो क्वाड्रेंट 2 में बेसिकली ऑडियो वीडियो और स्क्रिप्ट, ये दोनों चीजें जाती हैं। तो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें जो एक्सपर्ट है, जो प्रेजेंटर है, वो ऑलमोस्ट 25% ही स्क्रीन पे दिखाना होता है। बाकी पूरी वीडियो में हमें ई कंटेंट, अपना स्लाइड्स होगी, ग्राफिक्स, एनिमेशन, पीपीटी, रेलेवेंट वीडियोस, एनिमेशन, वो सब कुछ भी दिखा सकते हैं, है ना। तो जो वीडियो की क्वालिटी रहती है वो एचडी होनी चाहिए, 25 फ्रेम मतलब पर सेकंड। इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टीवी की टेक्निकल लैंग्वेज हो जाएगी, पाल एनटी ऐसी, है ना। तो वो ये क्वालिटी जो है वो अल्टीमेटली हमें वीडियो में मेंटेन करनी पड़ती है। तो जब हम लोग ई कंटेंट की बात करते हैं, इसमें बहुत से स्टेप्स, प्रोसेस और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं जिसे एक टीचर को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो कोई भी जो एक्सपर्ट है, अगर वो प्रपोज करना चाहता है अपना मूव कोर्स, तो वो बीइंग सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर या पीआई, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो इसमें उसे क्या करना होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बात हम लोग कर रहे थे कि जब हम लोग सोशोलॉजी ऑफ जेंडर प्रपोज करना चाह रहे थे, तो उसमें हमने स्वयं पोर्टल पे गए और उस वहाँ से हमने एक कोर्स जो है वो सिलेबस है वो डाउनलोड करा। तो मतलब यूजीसी मॉडल करिकुलम को ही आपने चूज करना होता है। ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है, पेपर फाइनल करा। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कोई सिलेबस है वो 4 क्रेडिट है, 4 क्रेडिट का है। ये क्रेडिट सिस्टम ना बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है जो हर एक्सपर्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर जो मूव कोर्स हैं वो रिफ्यूजल के चांसेस मुझे लगता है यही हो जाता है कि जो कोर्स क्रेडिट है वो जस्टिफाई नहीं कर पाते अपने टॉपिक्स में, मॉड्यूल्स में। तो क्या करना होता है कि अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो आपको 40 मॉड्यूल्स जो है बनाने होते हैं, 40 टाइटल आपको बना के सबमिट करने होते हैं। सो जिसमें मान लो कि सोशोलॉजी ऑफ जेंडर या फिर लॉ की बात करें, साइबर लॉ, अगर आपने एक पेपर उठाया जिसे जिस पे आपको मतलब 4 क्रेडिट का कोर्स है, आपको उसका उसका मूव प्रपोजल बना के सबमिट करना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बीइंग सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। कोर्स सिलेबस ले लिया, उसके बाद उस सिलेबस को 40 लेक्चर्स में डिवाइड करना है। ठीक है। 40 लेक्चर्स में डिवाइड करने के बाद आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है। बहुत से टीचर्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि जो 40 मॉड्यूल्स है उसे किस तरह से कौन अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं बात करूं कि फिल्म मेकिंग,
फिल्म मेकिंग में नॉर्मली सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, फिल्म एडिटिंग, ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं। लेकिन हर किसी की जो स्पेशलाइजेशन है वो हर सब्जेक्ट में नहीं हो पाती। तो ऐसे ही जब हम लोग बात करेंगे ना साइबर लॉ की, तो उसमें बहुत से टॉपिक्स एरियाज ऐसे होंगे जिसमें कोई ना कोई एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर से परफॉर्म कर पाएगा। तो आपको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को अपने टॉपिक्स अलॉट करने होंगे। ठीक है। उसके बाद जैसी स्क्रिप्ट आएगी आपके पास, तो उसे फाइनलाइज करना पड़ेगा, उसका प्लेगरिज्म चेक करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि जो वर्ड लिमिट है वो अप टू द मार्क है, जो स्क्रिप्ट है वो ठीक है ना। क्योंकि जब कोर्स हम लोग डेवलप करते हैं तो उसमें हमने देखना होता है कि जो कोर्स है वो यूजी के स्टूडेंट्स के लिए आप डेवलप कर रहे हो या फिर पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। जब कोर्स सारा बन जाएगा तो उसे रिव्यू करना होता है ना, फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, फिर जाके अपना शूट पे हम लोग उस पे शूट स्टार्ट कर सकते हैं। सो फाइनली जब आपने ये सारा डिज़ाइन कर लिया, तो उससे पहले फिर आपको एक ना ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स रहती हैं हमारे यहाँ। क्योंकि जब हम लोग शूट की बात करते हैं तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होता है। कई बार स्पेक्स की बात करें, बहुत से आई साइड वीक होती है, स्पेक्स होती है, रिफ्लेक्शन आ जाती है। अगर हम लोग क्रोमा कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मली आपको ग्रीन कलर या फिर कॉस्ट्यूम पे थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कौन से कॉस्ट्यूम पहने जिस जो बेटर लगे स्क्रीन पे, है ना। तो मतलब पार्टिसिपेशन से पहले एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप रहती है जिसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। अ, यहाँ ना मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे मुझे पता कि ऑडियो नहीं आएगी, है ना, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे कि अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ह्यूमन राइट्स की है वीडियो। जसलीन मैम, ह्यूमन राइट्स वाला कोर्स ही हम लोग कर रहे थे मुझे लगता है। जी। हाँ जी, पीजी पीजी ह्यूमन राइट्स, आई थिंक, वो हाँ। जीएच। सो हम लोग ना ये स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस करी थी कि दो मेजर कोर्स हैं जो हम लोग यहाँ ईएमआरसी पटियाला में देख रहे हैं। पहला है स्वयं, दूसरा है स्वयं मूक्स, स्वयं प्रभा और स्वयं मूक। जो मूक है वो रिप्रपोज और फ्रेश मूक्स, दो, उसके अंडर दो मतलब प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। तो जो स्वयं प्रभा है उसमें हमारे पास एक डीटीएच का चैनल है, लॉ एंड लीगल स्टडीज। उसमें हम लोग ना ह्यूमन राइट्स का ये कोर्स था जो हम लोग कर रहे थे। तो जब हम लोग अभी बात कर रहा था मैं कि कॉस्ट्यूम, मेकअप और कलर, है ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती हैं। तो जब जब हमने ये शूट करना था, तो मैं ना अभी ऑडियो नहीं है लेकिन वीडियो को देख के मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की किस तरह से डाइवर्ट होती है, माइंड किस तरह से डाइवर्ट होता है जब आप वीडियो कुछ देखते हैं। यहाँ एक्चुअली मैम मेरे से बात कर रहे थे कि मेरा गला अड़ गया था ना, है ना। तो ऐसी कई चैलेंजेस होते हैं जब आप स्टूडियो में जाएंगे तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस होंगे जो आपको फेस करने होंगे। तो वहाँ बहुत से ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो अपनी ईगो पे ले लेते हैं, है ना। मुझे याद है कि एक मेरे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से एक प्रोफेसर थे। तो मुझे उनका कोर्स मिला, 40 मॉड्यूल्स का कोर्स, 4 क्रेडिट का कोर्स था, 40 मॉड्यूल्स बनाने थे। तो फर्स्ट मीटिंग में मैंने पूछा कि कितने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं आपके इस कोर्स में। जवाब था कि मैं अकेला काफ़ी हूँ यार, मैं कर लूँगा। तो मुझे लगा, सर मुझे लगता है कि आपको
कम से कम 2-3 एक्सपर्ट्स तो जरूर इन्वॉल्व करने चाहिए। उसका रीजन है, एक तो आपके कोर्स की जो क्वालिटी है, रीच है, वो बढ़ती है ना। दूसरा, कंटेंट में वेरिएशन आती है। अगर कोई साउथ का प्रोफेसर है, उसकी एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, एजुकेशन, वो सब डिफरेंट होगा। कोई पंजाब का है ना, तो उसकी एग्जाम्पल्स डिफरेंट होंगी। तो सेम एज इट इज, मैंने जब उनसे बोला तो वो कहते कि नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं, मुझे तो पता ही था क्या होना था। वो जैसे ही हमने शूट शुरू करा तो उनकी आंखों में से ऐसे पानी निकला जैसे स्लो में। तो वो कहते कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना। तो मैंने फिर उन्हें हमने ब्रेक ली। तो उसी समय उन्होंने डिसाइड करा कि मेरे पास 19 लेक्चर जो पेंडिंग है, मैं एक दो एक्सपर्ट अपने नए लूंगा, कि मुझे लगता है कि आप ठीक बोल रहे थे। तो ये चीजें जो है वो आपको कहीं ना कहीं कहीं किसी और दिशा में लेके जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ई कंटेंट की बात करेंगे ना, तो ई कंटेंट हम लोग, नो डाउट, हम लोग क्लासरूम टीचिंग में मास्टर हो सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के मास्टर हो सकते हैं, वर्ल्ड में बेस्ट टीचर हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग ई कंटेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे ना, तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो एक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की हमें सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो मैं ना इसका दूसरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप महसूस करेंगे कि जो माइंड, जो स्टूडेंट्स का जो माइंड डाइवर्ट है, वो किस तरह होता है। आप ना थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो ये वीडियो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, आप एक बार देखिएगा प्लीज जरूर। अभी देखिएगा, ये ग्रीन है, एकदम से ये ब्लैक हुई। मैंने इसे दोबारा प्ले करता हूँ, आप ना एक ऑडियंस के जरिए महसूस करिएगा कि आपका जो फोकस है वो किस तरह से डाइवर्ट होगा, शिफ्ट होगा। तो पहले हमारा फोकस था पूरी स्क्रीन पे, उसके बाद फोकस शिफ्ट हुआ हमारे एक्सपर्ट पे। जो तीसरी जो बैक थर्ड टाइम जो फोकस अपना शिफ्ट हुआ बैकग्राउंड पे, देखिएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये दिखने में बहुत कॉमन है। अभी भी जो ये पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, ये बैकग्राउंड की एक्चुअल में जो सेटिंग ठीक से नहीं है, ढंग से नहीं है। इसी लेक्चर का ना मैं फाइनल वर्जन आपको दिखाता हूँ। वो आप देखिएगा कि किस तरह से जो बैकग्राउंड है वो अ, अगर जो प्रोग्राम है वो जो बनने के बाद किस तरह से नजर आता है। अ, ये जो वीडियो है, ये फाइनल वीडियो है, जिसमें आप देखिए, जो पहले जो पहली वीडियो में जो बैकग्राउंड थी वो बिल्कुल अलग से थी, एज इट इज उठाई और बैकग्राउंड पे रखी। लेकिन इसमें क्या किया हमने, उसे प्रॉपर रखा। ये आप जो देख रहे हो ना, लॉ सर्विसेज या फिर बाकी सारी चीजें, है ना, सिंबल, वो सिंबॉलिक चीजें जो हैं वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फाइनलाइज करनी होती है, चूज करनी होती है। बहुत से एक्सपर्ट्स जो है वो, उन्हें लगता है कि वो स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद उनकी बात खत्म, है ना। प्रेजेंटेशन के बाद तो उन्हें लगता है कि वो अपना बस पैसे ही आने हैं, बाकी सारी चीजें तो ठीक ही हैं, है ना। तो जब आप
कोई भी चीज लिखें, स्पेशली स्क्रिप्ट मूक कोर्स जब आप डेवलप करें, तो उसमें मतलब ऑलमोस्ट 3 तरह की स्क्रिप्ट्स होती है जो आपको हमेशा याद रखना है ना। एकेडमिक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट होगी, प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, और तीसरी जो रहती है वो शूटिंग स्क्रिप्ट। अगर इन चीजों को आप अपने ध्यान में रखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपका कोर्स तो एक अच्छा बनेगा ही बनेगा। जो आपकी जो एक्सरसाइज होगी ना सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत कमाल होगी। क्योंकि मोस्टली अभी हम लोग जब लेक्चर प्रिपेयर करते हैं ना, तो विजुलाइज नहीं करते ज्यादातर टीचर्स। वो सिर्फ लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। लेकिन जब आप उसे एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब करेंगे ना, तो आप उसे समझ पाएंगे कि चीजें हैं क्या। अगर मैं साइबर लॉ में किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, मान लो सिनेमाटोग्राफी में अगर मैं टाइप्स ऑफ शॉट्स की बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि शॉट्स कितने तरह के हैं। अगर सिंपल तरीके से ऐसे ही मैं डिस्कस करके छोड़ दूं, तो उतना इंटरेस्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स का। लेकिन टाइप्स ऑफ शॉट्स के बाद जब मैं बोलूं क्लोजअप, मीडियम शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, है ना, तो उसके बाद वो शॉट विजुलाइज हो जाए स्क्रीन पे, तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही रीजन होता है कि हम लोग जब अभी हम लोग यहाँ काफ़ी सारे मूव कोर्स ना ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें बहुत से कोर्स ऐसे होते हैं जिसपे स्टूडेंट्स इनरोलमेंट अगर 5,000 है, तो व्यू जो लेक्चर के होते हैं कई बार 50 भी नहीं होते। उसका रीजन ये है कि बच्चे या तो स्क्रिप्ट से पढ़ लेते हैं, या फिर लास्ट में जाके पढ़ते हैं कई बार, है ना, हो जाता है। मुझे ना एक बात याद आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो लास्ट वाले दिनों में ना, मतलब ज्यादातर अगर हम लोग भी पेयर में बैठ के अपने ग्रुप में बैठ के पढ़ते थे कि चलो भी ठीक है, एग्जाम्स आने वाले हैं, कि जल्दी जल्दी से रिवीजन कर ले। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे सिलेबस उठा के कहते ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है, तब पूछते हैं ये क्या हो गया, है ना। तो वो सारी चीजें कई बार ना आपको उस लेवल तक लेके नहीं जा पाती जो एक्चुअल में हमें देखना पड़ता है। अभी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने मूव प्रपोज करा है या नहीं करा, लेकिन ये श्योर है कि जितने लोग हैं वो सब लोग इंटरेस्टेड हैं मूव प्रपोजल सबमिट करने में। ठीक है। तो अभी अगर आप मूव प्रपोजल बनाएंगे, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्रेडिट देखने कितने क्रेडिट का कोर्स है। उसके बाद उस क्रेडिट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है, टॉपिक्स में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो 40 बनेंगे, 5 का कोर्स है तो 50 बनेंगे, 3 का कोर्स है तो 30 बनेंगे। ठीक है। और जब स्क्रिप्ट लिखने बैठे हैं, तो बीइंग कोर्स कोऑर्डिनेटर आपने अपनी टीम को बताना है कि जो स्क्रिप्ट है वो कम से कम 2,500 to 3,000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग दोबारा प्रेजेंटेशन पे आते हैं। प्रेजेंटेशन तो वैसे ऐसे ही है, बातें तो ऐसे बहुत सारी कर ही रहे हैं। तो बहुत से लोग ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि मूव कोर्स में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैमरा पर्सन, है ना, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स, आपके एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, है ना, ये सब लोग। लेकिन लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जो आपका टीवी प्रोग्राम है, मूव लेक्चर है, वो किस तरह से बने, कैसे बनता है ना। अभी मैंने ना जसलीन मैम का जो कोर्स है वो ओपन कर रखा है। मैं ना चाहता हूँ कि मैं वो भी आपको थोड़ा उनका एक, ये जसलीन मैम का कोर्स है जो स्वयं पोर्टल पे चल रहा है अभी, है ना। तो ये रीरन हो रहा है। तो काफ़ी, मतलब ये पहले 4 क्रेडिट का था, अभी हमने ये 5 क्रेडिट का बना के भेजा है। तो लेकिन मिनिस्ट्री ने 4 क्रेडिट का कोर्स ही ये पोर्टल पे इसे चलाया अभी।
तो ये ना इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार जरूर देखिएगा। ऑडियो नहीं आ रही, मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि ऑडियो से ना बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी चीजें जो मतलब और भी इंटरेस्टिंग होती है ये चीजें। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप ना, मैं ये अपना चैट बॉक्स में डाल देता हूँ ये लिंक, आप इसको ना बाद में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके। तो अभी हमने एक वीडियो देखा जसलीन मैम का, जो मूव कोर्स जो स्वयं पोर्टल पे अ, अभी चल रहा है, ठीक है। तो उस कोर्स के लिए हमने बहुत मेहनत करी। जसलीन मैम ने ज़्यादा करी, ऑफ कोर्स। लेकिन मैं बार बार बोलता था कि मैम परसों शूट रख लें, कल कर लें, मतलब ये करना है, वो करना है। तो मूव कोर्स बनाना, सोचना बहुत आसान है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल। मुश्किल तब होता है जब टीचर का इंटरेस्ट हो ही ना, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो आप इसे इतना एंजॉय करेंगे ना, आप सोच नहीं सकते कि आप कितना एंजॉय करेंगे। क्योंकि मुझे याद है, चाहे जसलीन मैम है, चाहे श्वेता मैम है, और भी बहुत से टीचर हैं, लेकिन इन दोनों का नाम मैं क्यों बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इनके साथ काम करने में। क्योंकि चीज़ें कई बार बहुत आसान होती हैं, लेकिन हम लोग अपनी पर्सनल ईगो की वजह से उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों होगा। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक विजुअलाइजेशन होती है, हर इंसान की एक स्पेशलाइजेशन होती है। जब हमने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया, तो मुझे याद है कि ये जो ओपन वाली वीडियो है हमने बना के मैंने भेजी, मैम कहते कि यार बहुत अच्छा है, तो ठीक रहेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो मूक प्रोग्राम है वो कैसे बने, है ना। अ, मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, स्टार्टिंग में भी मैंने ये बात शेयर करी थी। उन्हें लगता था कि यार 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ये 25-26 साल का लड़का मुझे क्या सिखाएगा, है ना। तो हुआ ये कि इस बात को भी 4-5 साल हो गए। तो हमने कोर्स करा, उसमें वो बैठे जब, मतलब स्क्रीन के सामने, उनका जितना एक्सपीरियंस था ना, वो उन्हें लगा कि यार मैंने गलत पंगा ले लिया, है ना। तो स्पेक्स थी, तो आंखों में से इतना पानी निकल रहा था। वो, मतलब मैंने ही बोल दिया, वो तो बोल नहीं पाए, मैंने ही बोल दिया कि चलो ब्रेक करते हैं। टी ब्रेक में फिर हमने डिस्कस करी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ और एसएमईज एंगेज करें। तो उन्होंने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बहुत एंगेज करे, मतलब 3-4 और एक्सपर्ट एंगेज करे, जिस वजह से उनका कोर्स, मतलब पिछले सेम 6 बार चला उनका कोर्स। तो नॉर्मली जब हम लोग टीवी प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो टोटली 3 स्टेजेस होती हैं: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में इसे हम लोग मूव के साथ रिलेट करूंगा मैं। प्री प्रोडक्शन में अभी डिस्कस करते करते आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया हुआ कि इस कोर्स पे मैंने मूव प्रपोजल डालना है ना।
तो वो डेवलपमेंट स्टेज है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने ये बनाना है ना। अभी मतलब अ, वो फिल्म प्रोडक्शन में 5 स्टेजेस होती है, टीवी प्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होती हैं। तो प्री प्रोडक्शन में आपने डिसाइड करना है भी किस कोर्स कोर्स को आप प्रपोज करेंगे, किस कोर्स का मूव प्रपोजल बनाएंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है, उसी में आप डिसाइड करेंगे, वो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी में आप डिसाइड करेंगे कि वो कितने क्रेडिट का रहेगा। ठीक है, कितने क्रेडिट का रहेगा। तो कौन कौन लोग आपकी टीम मेंबर में रहेंगे, है ना। तो मतलब किस सेमेस्टर का जो कोर्स है वो आप उठा रहे हैं। ठीक है, तो कौन से बैच में वो चलेगा, है ना। जैसे जैन जून और जुलाई दिसंबर, ये 2 बैचेस में मूव जो कोर्सेज हैं वो स्वयं मिनिस्ट्री प्रपोज करती है एनरोलमेंट के लिए। प्रपोजल ओपन होते हैं, मूव कोर्स ओपन होते हैं एनरोलमेंट के लिए। तो आपने वो सारी चीजें भी देखनी है, अभी जो कोर्स आप पिक कर रहे हो यूजी का कोर्स है या पीजी का कोर्स है। ठीक है, तो यूजी पीजी के बाद आप देखेंगे कि किस ईयर या सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसके क्रेडिट आर कितने हैं, उसकी सब्जेक्ट मैपिंग ढंग से हो गई है, जो टाइटल है, जो लेक्चर का टाइटल है वो आपके टाइटल और कोर्स को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि अगर क्रोमा शूट है तो टाइटल के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड पे कौन सी इमेज जाएगी, है ना। तो मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त थे, प्रोफेसर तरुण अरोड़ा, वो आजकल नहीं है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में पढ़ाते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा में पढ़ाते थे। वो भी ह्यूमन राइट्स के कोर्स मेरे साथ कर रहे थे। हमने कोर्स करा तो वो एडिटिंग में चला गया, शूट हो गया, एडिट हो गया। तो एडिटर ने ना डायरेक्ट उन्हें प्रीव्यू के लिए भेज दिया। अब प्रीव्यू वाली पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग अपने मतलब रूटीन में बहुत सारी असाइनमेंट्स, टीचिंग और भी बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होती हैं, फैमिली देखनी होती है, कि हमें ये लगता है कि प्रिव्यू करने की जरूरत है ही नहीं। जो प्रोग्राम आपके आपके पास प्रिव्यू के लिए आया वो अपने आप में बहुत अच्छा है, तो मतलब ठीक होके ही आया है। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर एडिटर या फिर प्रोड्यूसर आपको कोई प्रोग्राम प्रिव्यू के लिए भेज रहा है तो इट मीन्स कि आपने उसे देखना है। क्यों देखना है मैं बताता हूँ। तो जब तरुण अरोड़ा सर ने वो प्रिव्यू करा तो पहले उन्होंने तारीफ करी, कहते कि मेरी बीवी मेरे पीछे खड़े थे जब मैं प्रिव्यू कर रहा था। वो कहते कि आप इतने सुंदर है तो नहीं जितने स्क्रीन पे लग रहे हो। सो वो सारी चीजें ना, मतलब जब आप स्क्रीन पे खुद को देखोगे वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी जैसा मतलब माहौल बन जाता है। तो उन्होंने पहले तो ये मुझे बोला कि मेरी बीवी ने ये बोला, लेकिन दूसरी बात मुझे ये बोली कि उसमें जो इंसर्शंस हैं, जो पिक्चर्स है वो मतलब अप टू द मार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिक्चर्स भेजी नहीं थी। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि जब आपने अपना टाइटल लिखना है तो उसमें एक स्क्रिप्ट ऐसी रखनी है जिसे हम लोग एडिटिंग स्क्रिप्ट बोलते हैं। एडिटिंग स्क्रिप्ट में आपने पिक्चर्स कहाँ लगेंगी, किस तरह से जाएंगी, कितनी लाइंस पे जाएंगी, वो सब कुछ मेंशन करना होता है। मेंशन कैसे करना होता है? पिक्चर नंबर 1, है ना। तो वो 2 लाइंस आपने बोल्ड कर दी तो क्लियर हो जाता है कि वो स्टार्ट में साइड में नोट आ जाता है कि ये जो फर्स्ट इमेज है वो जो दो दो लाइंस पे जाएगी। तो वो इमेज उन्होंने इंडिया की इंडिया की कोई यूज करनी थी, लेकिन उन्होंने यूएसए की कोई इमेज यूज कर ली। उन्होंने बोला कि वो इमेजेस ठीक नहीं है। तो वो सारी चीजें प्री प्रोडक्शन में ही आपने डिजाइन करनी है जब आप मूव प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। अब मेजर पार्ट आता है प्रोडक्शन वाला। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, जो आपने चीजें डिसाइड करी हैं प्री प्रोडक्शन में वो आपने प्रोडक्शन में आके परफॉर्म करनी है। प्री प्रोडक्शन में ही आपने डिसाइड करना है कि वो जो आपका शूट है वो क्रोमा पे जाएगा, ठीक है, या फिर वो ब्लैक स्क्रीन पे जाएगा, आउटडोर में जाएगा या फिर क्लासरूम में जाएगा। वो सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या फिर कोर्स कोऑर्डिनेटर के पास ना बहुत सी लिबर्टी होती है। दूसरी बात, कोर्स आपका है तो आप ही डिसाइड करेंगे कि उसकी रीच, उसकी प्रोडक्शन, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होनी चाहिए।
ठीक है। तो जो आपने डिसाइड करा प्री प्रोडक्शन में, वो हम लोग प्रोडक्शन में जाके उसे एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन आपने ये भी डिसाइड करना है कि जो कॉस्ट्यूम है वो किस तरह की होनी चाहिए। मुझे एक चीज और याद आ रही है, डॉक्टर रचना मैम है यहाँ राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, उनका फर्स्ट शूट था। पहले शूट पे आए तो वो मेकअप करके नहीं आए। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी जो हमारा लेक्चर है ना, क्योंकि आपके साथ साथ हमारा नाम भी जाता है, कोई भी वीडियो जाता है ना, तो लास्ट कैप्शन में, एंड कैप्शन में हमारी पूरी टीम का नाम जाता है, सेंटर का नाम जाता है। तो उस कंडीशन में हमें वो चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। तो हमारे कैमरा पर्सन है मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बोला कि मैम मेकअप करके नहीं आए तो मेकअप तो करना पड़ेगा। हमारे पास मेकअप मेकअप का सारा सामान पड़ा है। मेरे पास पिक्चर्स भी पड़ी हैं वो मैंने रचना मैम को शेयर भी करी। तो वो उनका ना हमने मतलब जहाँ जरूरत थी तो उतना हमने मेकअप करा। तो वो मेकअप करने के बाद मतलब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब भी मैम आए तो वो अपना मेकअप करके आए, कॉस्ट्यूम जो डिसाइड करके आए। तो चीजें अगर इस तरह की इंटरेक्शन हमारी लाइफ में होती रहें तो ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। क्योंकि अ, सोच के देखो, अगर हमने कहीं घर से भी बाहर जाना होता है ना, तो हम लोग विदाउट मेकअप नहीं जाते, है ना। लगता है कि मतलब कॉमन सी बात है, शादी में जाना हो तो 20 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो मैं, श्वेता मैम और जसलीन मैम, हम लोग तो इतने कंफर्टेबल है, जब हम लोग नया कुछ डिसाइड करते हैं ना, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि चलो अब नई शॉपिंग कर लें, है ना, क्योंकि नया शूट शुरू होने वाला है ना। तो वो चीजें ना बहुत बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं, है ना। आप अभी जो हमने जसलीन मैम का एक वीडियो देखा, मैं आज देख रहा था, जो हमने, मैं ना इंट्रोडक्टरी वीडियो जसलीन मैम की दिखाता हूँ। वो ना मतलब So I told the participants yesterday that I was not prepared to make it the same day. आपने pressurized किया कि अभी बनाओ, मैं अभी देखो हम चाय पीते हैं. I told yesterday when I had lecture, sir said कि अभी मैं देखो हम चाय पीते हैं, आप मुझे दो. He had such a faith that the person can do this. This is how the producers understand ambitions. या बहुत बड़ा तो रोल होता है. मैं ना ये जो वीडियो है, ये जसलीन मैम आपको याद है, इसमें मतलब स्पार्क हुआ था अपने स्टूडियो में, Yes, 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 है yes. ना। The तो वो जो spark and fire in the studio. Yes. यस, सो बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। ये नहीं है कि आप शूट के लिए आए, शूट किया और चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुझे याद है जब मैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स का शूट कर रहे थे, शूट करना था इनफैक्ट, तो डॉक्टर राजेश GNDU से आए थे, उस दिन मेरा Yes. बर्थडे था। तो पूरा दिन Yes, I लाइट नहीं remember. आई। तो हम लोग, हम मतलब आप केक लेके आए थे, हमने केक खाया। तो हम लोग डिस्कस हुई, सब्जेक्ट की डिस्कस, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस हुआ, मूव के बारे में डिस्कस हुआ, लेकिन शूट नहीं हुआ, है ना। तो Yes. वो शूटिंग I came चैलेंजेस to बहुत। Amritsar Patiala all the drive, and he जी was sitting with us for 4 to 5 hours outside the AMRC to wait for the lecture. लेकिन उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था हमें. जी I जी। remember. तो Yes. तो ये ना जो वीडियो है, इस वीडियो में मुझे मुझे याद है कि वो स्टूडियो में ना स्पार्क हुआ। तो मतलब मैम ने देखा, वो वीडियो नहीं है, लेकिन ये फाइनल वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अ, जसलीन मैम हमारा बोल रही है, मैंने हाय बोलना है जसलीन मैम को, बाद में बोल देना आपको। Yes. Hello, Myra. How are you, Mimi? There are lots of friends of yours on the screen. They're around, I think, या otherwise they are in around 700, but 100 plus are in the वही and वही देख रही, तो वो कहती मैंने हाय बोलना है। तो ये she's a really dear baby. God bless. कई कई बार तो ये क्लास ले लेती है मेरे वाली। सो हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे कि जो जसलीन मैम वाला जो अभी हमने वीडियो देखा, नॉर्मली मैंने टाइप्स ऑफ शॉट्स की बात कर रहा था। तो बहुत से वीडियो आपने मतलब बहुत से कई मतलब बायजू या फिर ऑनलाइन जो कंटेंट अभी कोर्सेज देते हैं, उसमें बहुत से वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें प्री प्लान्ड चीज़ें होती हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसा प्री प्लान करें, फॉर एग्जांपल अगर मतलब आप चाहें कि पॉइंट नंबर 1 ऐसे करें, तो वो पॉइंट वहां आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोर्स करने से पहले उसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैं टाइप्स ऑफ शॉट्स की बात कर रहा था, मैंने मैम को बोला कि वो हम लोग मिड शॉट रखें या क्लोजअप रखें। मैम ने बोला कि मैं मेरी लिबर्टी कहाँ तक है, मैं हैंड मूव मूव कहाँ तक कर सकती हूँ, है ना। क्योंकि मेरी हैंड मूवमेंट्स रहती है जब मैं लेक्चर डिलीवर करती हूँ, जब उस समय प्रोफेसर्स को ध्यान में नहीं रहता कि मेरी हैंड मूवमेंट कहाँ तक जा रही है। तो हमने डिसाइड करा कि हम लोग जो फ्रेम साइज है इतना रखेंगे, ताकि जो हाथ कटे ना, है ना, जो क्वालिटी है कंटेंट की वो भी इम्प्रूव रहे और बच्चे भी इन्वॉल्व रहे, है ना। तो शूट शूट पे जो भी आप पहले प्री प्रोडक्शन में डिसाइड करते हैं, तो वो सेम कोर्स सेम एज इट इज जो डिसाइड करते हैं, कोर्स के टाइटल, कोर्स क्रेडिट आर कितने कितने लेक्चर रहेंगे, क्या कॉस्ट्यूम रहेंगी, वो हम लोग प्रोडक्शन में जाके शूट करते हैं। तो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई कई बार हमें लगता है कि भी जो कंटेंट है वो 2 घंटे में बन जाएगा, या फिर ये यूं कहें कि जो कंटेंट है वो 2 वीक में बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे ना ध्यान में रखिएगा। अभी जो प्लेगरिज्म जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है ना। जब आप कंटेंट लिखें, क्योंकि आजकल एआई जनरेटेड बहुत कंटेंट आ रहा है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि रिसेंटली अभी एक मैं मूव कर रहा हूँ, मूव का टाइटल है साइकोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल एजुकेशन। उसमें ना बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। तो कंटेंट लिख के मुझे भेजा, कंटेंट सिमिलैरिटी 2%, लेकिन एआई सिमिलैरिटी जो है वो 67%, है ना। तो आप जब कंटेंट लिखें तो मतलब थोड़ा सा उसे ध्यान में रखें कि किसी को पता चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। कंटेंट लिखते समय कई बार हमें लगता है कि कहाँ आएगा, सिमिलैरिटी हमें रिमूव करनी है, मतलब प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए, एआई से कर लेते हैं। तो एआई से हो तो जाता है, लेकिन आजकल वो शो हो जाता है। तो ये एक चार्ट है, जब आप एक जो कंटेंट है, जब एक लेक्चर कहाँ से कहाँ तक किस तरह से बनता है, वो ये चार्ट है, जिसमें नॉर्मली क्या है कि 4 घंटे नॉर्मली एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को जो है ना ई कंटेंट कैसे डेवलप करना है, उसकी ओरिएंटेशन वर्कशॉप वगैरह सब जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 8.5 दिन एक लेक्चर को प्रोड्यूस करने में, बनाने में जाते हैं, है ना। बहुत से ऐसे हैं एक्सपर्ट, मैंने पहले भी बात करी कि वो प्रिव्यू नहीं करते। हमें कैसे पता चलता है कि वो प्रिव्यू नहीं करते? कई बार कुछ कोर्स कहीं मतलब वर्ड्स ओवरलैप हो जाते हैं, कई बार मतलब वीडियो में ग्लिचेस आ जाते हैं, कई बार ऑडियो जर्क हो जाता है, और कई कई बार तो ये होता है कि स्वेटिंग होती है फेस पे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जो मतलब
स्टूडेंट्स को मतलब इन्वॉल्व नहीं होने देती चीज़ों में, आपके कंटेंट में। तो जब आपके पास प्रीव्यू के लिए कोई लेक्चर आए तो आपने प्रीव्यू करना है ना। तो मुझे लगता है कि एडिटिंग वाला इतना है नहीं इम्पोर्टेंट। तो एक ना मतलब प्रॉपर एक प्रोसेस होता है रफ कट टू फाइनल कट पे जब हम लोग जाते हैं, है ना। तो मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बीइंग सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। स्टार्टिंग में हमने बात करी कि जो बैकग्राउंड्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो किस तरह से हो। अभी जो हमने प्ले करा उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों जगह पे म्यूजिक चलता है ना। कई कई बार आपने कोई एनिमेशन डालनी है, कई बार आपने कोई कहीं से कोई वीडियो है जो आप चाहते हैं कि वो जो रेलेवेंस है वो दिखानी है, तो उसके नीचे हम लोग ने कोई म्यूजिक चूज करना होता है ना। तो वो म्यूजिक किस तरह से हो वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप हैं, जो एडिटर है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है। वो एडिटिंग एक्सपर्ट तो हो सकता है, लेकिन वो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो आपको वो चीजें देखनी है और समझनी है कि वो मेरे कोर्स में किस तरह से वो कौन सी चीज जाए, ताकि वो जो मेरा कोर्स है वो अच्छा बन जाए। तो इसमें मतलब जब आप शूट करके जाते हैं तो डाटा को प्रॉपर संभालना होता है ना। डाटा को सेव करना होता है। तो वो बहुत से एडिटर्स हमारे पास होते हैं, वो लेक्चर वाइज एडिटर्स के पास चला जाता है कि जसलीन मैम के 10 लेक्चर हैं, तो पहले दो एक के पास जाएंगे, दूसरे दो दूसरे के पास जाएंगे, इस तरह से वो शफल हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो बहुत सी चीजें, जैसे मैंने अभी वीडियो दिखाई थी उसमें मैम ने पूछा था कि मेरा गला अड़ रहा है ना, तो वो अनवांटेड जो शॉट्स हैं वो हमें रिमूव करने पड़ते हैं, वो एज इट इज भी चला सकते हैं। हालांकि जो वीडियो एडिटिंग है वो दो तरह से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जितने भी आप रियलिटी शोज, लाइव शोज देखते हैं ना, वो मतलब ऑनलाइन एडिट चलती है, वो लाइव एडिटिंग होती है। जैसे क्रिकेट मैच हो गए, वो कोई भी गेम्स होगी, वो लाइव एडिटिंग चलती है ना। तो लेकिन यहाँ अगर हम लोग मूव की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन एडिटिंग करनी होती है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मतलब अनवांटेड जितने भी शॉट्स या चीजें होती हैं वो रिमूव करनी होती है। कई कई बार तो एक्सपर्ट ना गलत चीजें भी स्क्रीन पे बोल देते हैं, है ना। डाटा गलत कई बार प्रेडिक्ट हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लॉ की बात करें, बहुत सारे नई अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो अगर हम लोग पुराने मतलब 5 साल पुराने की बात करेंगे, 10 साल पुराने लॉ की बात करेंगे, तो वो आज की डेट में हो सकता है कि वो चेंजेस के साथ आए, है ना। तो उस कंडीशन में हमें रीशूट भी करना पड़ता है, ऑडियो रिकॉर्ड भी करनी पड़ती है। तो जितनी मिस्टेक, रिपीटेशन, फंबल्स होते हैं उसे रिमूव करना पड़ता है। तो जो इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, वो सारी चीजें अपनी हमें करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो प्रीव्यू की हम लोग बात करते हैं, ये 3 लेवल पे जो है वो प्रीव्यू जाता है। इनफैक्ट 3 से भी ज्यादा 4 लोग प्रीव्यू करते हैं। प्रोड्यूसर, एडिटर करता है, प्रोड्यूसर करता है, एक्सपर्ट करता है, तो एक रिव्यूअर जो रहता है वो भी इसे प्रीव्यू करता है कि वो जो कंटेंट है वो अप टू द मार्क है। 4 जगह से एक कंटेंट प्रीव्यू होके फिर जाता है। स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल पेडागोजी में जो हमने बात करी थी ना कि फीडबैक सिस्टम, यहाँ फीडबैक सिस्टम है, आपके हर लेक्चर का फीडबैक सिस्टम है। आपकी छोटी सी छोटी मिस्टेक जो होगी ना, वो नोटेबल होगी, वो नोटिस की जाएगी कि ये चीज़ ठीक नहीं है। वो चाहे प्लेगरिज्म रिपोर्ट की बात हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन की बात हो, आपकी डिलीवरी की बात हो, या फिर आपकी कंटेंट में इन्वॉल्वमेंट की बात हो। तो जब हम लोग एडिटिंग की बात करें तो आप प्लीज अपने लेक्चर को एक बार जरूर रिव्यू करिएगा। ऑडियो की तो हमने बात कर ही ली कि जो ऑडियो है वो जो स्टार्टिंग में या मिडल में जहाँ पे आपने कोई एनिमेशन यूज करी, लास्ट में लास्ट कैप्शन जो एंड कैप्शन है वहाँ पे यूज होती है। लेकिन जो ऑडियो है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चाहिए होती है ना। अगर सोशोलॉजी ऑफ जेंडर में ये तो साउंड नहीं लगा सकते कि चैन से जो सोना है तो जाग जाओ, है ना। तो वो रेलेवेंसी बननी नहीं थी, है ना। तो अगर अगर आप अगर वो मतलब आप जरूर देखिएगा मैम का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है ना सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर का। मैम अगर पॉसिबल है तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, है ना।
वो जब भी समय मिले आप एक बार Shreya, so many of them have already joined it, so I'll share again. When you all open the MOOC, it starts. मैं भेज दूंगी दोबारा से. जनरल। सो वो ना वो जो ऑडियो है ना वो बहुत मेजर रोल अदा करता है। एक एक चीज जो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करे हमें उस पर ध्यान देना है। वो आपके एंड से भी आपने देखना है, वो प्रोड्यूसर के एंड से भी हमने देखना है। ठीक है। कोर्स क्रेडिट की भी बात होगी। चैलेंजेस टीचिंग असिस्टेंट ऑलमोस्ट सारी डिस्कस हो चुकी है। तो इन केस अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। और वैसे भी मैं यहाँ EMRC पटियाला बैठता हूँ, तो किसी ने आना भी हो तो मोस्ट वेलकम। प्रोजेक्ट्स तो चलते ही रहते हैं हमारे पास। जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. So I think we can keep the this session for question and answers, and participants if have any question, then they can post it in the chat box. या Maybe those who want to talk to sir can also raise your hand. We will unmute you. Charan sir, I just I told about you to all the participants. जब मेरा lecture था शायद 3 दिन पहले, I was already telling them, और मैंने एक थोड़ा bitter truth इनको बताया था सबको, because being organizers हमारी ड्यूटी ये बनती है कि participants को सही information जानी बहुत जरूरी है। और वो इमोशनल होकर ज्यादा जीलस होकर जो आपने कहा कि गलत डिसीजन ना लें, so I told them about lot of challenges they have to pre-plan how to combat, है ना, जैसे जॉब प्रोफाइल, हेडशिप का नेचर, कोऑपरेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, then meeting the producers and selecting the producers out of the group, जो 5-6 को मिलकर उनमें से एक को चूज करना, and depending upon temperament मैच करना। मेरे को लगता है कि इनको जो मेरा मेन पर्पस था, they should, since we have seen, मूव ज्यादा बनाने बहुत आसान है पर क्वालिटी मेंटेन करनी बहुत मुश्किल होती यस है ना। प्रोड्यूसर जो है वो कर सकते हैं, वो उनके उनके पास उनका काम वो पूरा, मतलब वो स्टूडियो लिंक तो बेन लाना है, वो टेक्नोलॉजिकल चीजें लाएंगे। एकेडमिशियन को सिर्फ लिखनी है, अगर उसको खुद लिखनी है, देयर आर टू थिंग्स, सिर्फ खुद लिखनी और सिर्फ आगे लिखवानी। आगे लिखवा के किसको कितना वेटेज देना है फाइनेंशियली, ऐसा समझ से तो बहुत अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। एक एक कंटेंट में हमने मुझे 1000 वर्ड्स के करीब एक पैराग्राफ दिया था, and I told him in the beginning before I offered this thing that it will be financially remunerated. और you know sad part is that the senior professors और मैं या कोई भी ऐसे लोग, अगर हम अपने रिसर्च स्कॉलर को यूज करते हैं फॉर ई कंटेंट राइटिंग एंड नॉट पेइंग देम एंड देन क्लेमिंग कि हमारे लेक्चर्स हो गए, ये करना बहुत आसान है। बट इफ यू कैन ऑलरेडी डू दिस, सो अगर खुद ऑनलाइन काम करना है, खुद कंटेंट लिखना है, खुद उसको रिसर्च करना है, तो आपके वर्ड्स में 100% तो बहुत चैलेंजिंग काम है उनको। वहाँ हर काम को थोड़ा डिसऑनेस्टी के साथ करना आसान हो जाता है, लेकिन उनको ऑनेस्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ करना और प्रोड्यूसर को आगे ट्रूथफुलनेस के साथ स्क्रिप्ट नहीं, ये एक दूसरा चैलेंज है। तो मैंने चेक किया था, आई थिंक आई वाज क्वाइट बट आई वाज ट्रूथफुल। मेरे को लगा मैं इनसे चैलेंजेस शेयर करूं, तो हमने इसे शेयर किए थे। और मैंने आपका एग्जांपल देके बोला था कि मतलब ऑल द प्रोड्यूसर्स आर गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हम लोग 2 साल 16 से हम लोग काम करते आ रहे हैं एक साथ। तो मूव जब मैंने डेवलप किया, मैंने चैलेंज के साथ, रीजन ये था कि वो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, वेरी क्लोज टू, बट आपका माइंड क्लिक कर जाता है ना, यू नो दैट which person will be right for you to work for 1 year length, for 6 months length। तो मैंने प्रोड्यूसर्स का रोल मैंने भी कहा कि विजिट करे, तो आपने भी ऑफर किया, कल हम कर दे। परसों बहुत अच्छे वो भी थे, वो भी प्रोड्यूसर हैं, कपिल सर गुजरात से थे, जो आप जानते हैं उनको, उनको वो तो मैंने फिर आए, अप्रिशिएट किया, वो भी अपना हम्बल। यस यस, यस सो दीस पीपल आई रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इनको चाहे आप मिलिए, चाहे इनसे मेल पे बात कीजिए, यू हैव गॉट एटलीस्ट 2 सच बेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ नेशन विद यू, जो बहुत हम्बल है, जो आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाने को तैयार है। सो थैंक यू सो मच सर, अप टू यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी, आई हैव दिस इज नो पार्शियलिटी दैट ही इज प्लेइंग माय वीडियोस, मेरे बड़ा से रुचि होता है इस चीज, जब भी EMRC पटियाला कहीं भी जाते हैं, चाहे कंट्री में, इंडिया में,
Thank God. मुझे जगह जगह से वीडियोस आते हैं, they show my videos maximum and Shweta ma'am also. So it is not that I have told him to play my videos. तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहा, सर ने मेरा सुरक्षा की, honestly he plays. ये सब ये सब प्रोड्यूसर्स ही और पूरा ग्रुप जो है इनका, ये अपने की वीडियोस प्ले करते हैं हर जगह पर, and it's a matter of pride for me. Thank you sir, thank you so much. थैंक यू मैडम, आप चंदन जी को लेकर सजेस्ट करने के लिए। जो प्रोग्राम मैंने जो सोचा था, राइट, सो ऐसा प्रोग्राम करेंगे 1 वीक का, उससे आई वुड से 5-10 गुना बेहतर आज बन के आया है ये 1 वीक का प्रोग्राम। मैं पर्सनली एज ए नॉट अ, पता ना, ऑर्गेनाइजर एज अ करके, लेकिन एज ए ऑडियंस मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट एक वीक का मूक पे, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया रिसोर्स बन गया है। सो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Congratulations to all the resource person, organizers and the participants. और मेरी वही थोड़ी क्लियर नहीं मैसेज आ रहा है। आई थिंक YouTube पे जब वीडियो आएगी, ऐसे कुछ सुन रही है कहीं देख तो YouTube पे सुन लीजिएगा, हम सारी बात ऐसे इसलिए मैंने आप पे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी सर, थैंक यू चंद्र सर, थैंक यू सो मच एक्सेप्टिंग द लास्ट मिनट रिक्वेस्ट। हमने 2-3 दिन पहले सर इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। थैंक यू, आई एम टू यू आल्सो। Thank you everyone. So this being the last day, I think we will keep this floor open for oral feedback as well. So I request the participants to stay back and we will take your oral feedback. Yes, participant, please, you can unmute yourself and then say something, whatever you want to say. So don't text, right? Please speak. We would love if you can come and talk to us. It is last session, पता नहीं कितने दिनों बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो अच्छा लगेगा, बात करिए हमारे साथ। चंदन सर भी हैं, हम लोग भी हैं आपके साथ, बात करिए। Yes. I request participant, you can please introduce yourself and then say something, whatever you want to One say. experience I would like to share. I think जब मैं research associate था at RGNUL, so जसलीन मैम, I remember एक FDP किया था हमने मूक पर, और जिसमें शायद चंदन सर को भी बुलाया था। तो वो आई थिंक वर्कशॉप था, तब जितेंद्र जी, चंदन जी आए थे, जब नीचे कॉन्फ्रेंस कॉल था। यस, गीतिका मैम ने कराया था, मुझे जितना याद है, और तब प्रोफेसर वाजपेयी भी थे। सो आई हर्ड चंदन सर पर्सनली एज वेल देयर physically, and there as well I also learned a lot, and today as well it was very interactive session. It was always a great listening to sir कि जितना वो practical session बनाते हैं, so it was always a great experience. different experience होता है, मतलब the person outside the studio is not the same when आपकी पिक्चर में देख मुझे हंसी आ रही है कि मैं ही हूँ वो, वही तेरा, आई एम द पर्सन हु नो मेकअप रेडी, मतलब मैं अभी तैयार हो जो मेरे को लोग नहीं जानते वही हैं। तो एग्जैक्टली, सो दे ट्रांसफॉर्म द पर्सन, ये लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इनका माइंड ही और होता है, इनका माइंड, इनके अप्रोच टुवर्ड्स योर पर्सनालिटी, इनके अप्रोच टुवर्ड्स योर टेक्स्ट राइटिंग, इनकी अप्रोच टुवर्ड्स योर इंटरेक्टिव डिफरेंट। आपको मेरे पहले सेशन में कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। तो कैमरामैन भी बोलेगा कि नहीं मैम रुक जाओ, तो कैमरामैन सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है स्टूडियो में। अब आपकी ईगो यहाँ पर अगर हर्ट हो जाती है, मैंने कहा था ह्यूमन रिलेशंस डेवलप करने बहुत जरूरी है कि कैमरामैन मुझे टोक दे, वो टोकेंगे भाई, उनका काम है, वो आपसे बेहतर समझ रहे हैं, आपसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो देख पा रहे हैं, हम तो नहीं देख पा रहे। तो सो अब मेकअप है, वो आके कोई भी बोल देगा तो मैम रुको, सारे बोलो स्वेटिंग की मैक्सिमम लाइट्स बहुत हो रही हैं। और जैसे एक बार वही स्टूडियो में आग लगने वाली थी, अब उस टाइम जितना मर्जी कोई बड़ा प्रोफेसर है, छोटा है, उनको भी उतना गलत है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ। थैंकफुली दैट लाइव्स आर सेव्ड, थैंकफुली डोर खुल गया, हम लोग बाहर चले गए। थैंकफुली वो मेरे सामने लाइट ऐसे मैं ऐसे इन लोगों की बैक की लाइट किया, मेरा का फेस था, फिर स्पार्क हुआ, तो मैंने इनको बताया अगर स्पार्क हुआ प्लीज स्टॉप द थिंग्स एंड वॉच, तो एकदम से इतना स्पार्क। सो ये अप्रोच टुवर्ड्स क्राइसिस, प्रोफेसर जी बात कर रहे थे, लाइक और भी तो प्यारी मैसेज आया, कॉल आई उनकी कि सर आई एम वेटिंग फॉर अदर टास्क टू वर्क विद यू, मेरे को टीम को दोबारा काम करना है। वो हेड है जीएनयू में डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर, वो अमृतसर से यहाँ पर हमारे पास आए हमें, और लाइट के लोड शेडिंग शुरू हो गए थे, तो बाई चांस सेम डे क्या हुआ, ईएमआरसी में कुछ डिफॉल्ट हो गया, जनरेटर नया था लेकिन वो नया वाला इंस्टॉल नहीं था, पुराना ऐसा ना कुछ पुराना वाला काम नहीं था, नया इंस्टॉल नहीं था। एनी हाउ द डायरेक्टर जितने पहले उन्होंने बहुत सोल्ड किया टेक्नीशियंस को
लेकिन मैं तब से नहीं होती पाया. They tried, but for 5-6 hours, and then said was birthday था, मैं केक लेके गई because we become family for each other. इनकी बेटियां वो मेरे को मम्मा बोलती है. Just from fresh relations, we develop so close family relations. तो हम ऐसे सर वहाँ बैठे प्रोफेसर जी 4-5 घंटे हम लाइट की वेट करने के लिए EMRC के बाहर आके कैंटीन के बाहर बैठ रहे. हमने चाय पी 2-3 बार. उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मतलब कोई उनको ईगो प्रॉब्लम नहीं थी. उन्होंने हमें रिएक्ट नहीं किया. उन्होंने बल्कि कहा एंड में हमें कहा सॉरी सर. मैं उनकी थी प्रोग्राम इंचार्ज थी पूरे पीजी डीटीएच प्रोग्राम की और सर प्रोड्यूसर थे. उन्होंने वो सॉरी नहीं मैम आप मुझे इतना अच्छा फ्रेंड्स दिए इतना अच्छा क्वालिटी टाइम मिला. वो बल्कि हम थैंक्स करके गए. तो दिस इज उनकी उनकी जो हम्बलनेस थी उनको शो करके हमारे आने वाले सब प्रोग्राम में साथ होंगे हमारे. So this is how we earn work. This is how we earn name and how we earn a reputation being a professional. तो humble होना बहुत जरूरी है. ये कह देना आपको मैं बोल दूं कि मेरा एक 5 बार चल रहा है. दुनिया के बड़े बुक्स हैं. लोग 8-8 बुक बना के बैठे हुए हैं. तो ये तो yes, Kabir, we have Manishri with us to talk. Yes, Punyasri. Raise hand. Yes, yes. Yes. Good evening, sir. Good evening, ma'am. This was a wonderful Good session. evening. So, Can you introduce? Sorry, can you introduce yourself so we also get to yes, know where yes, are you sir, from? absolutely, sir. Basically, sir, I am an assistant professor in Indore Institute of Law and also a research scholar in Damodaram Sanjeeviya National Law University. So basically, this session gave me a very good insight how to propose a MOOC and more majorly how a e-content is developed. So it is very helpful when it comes to corporate law, criminal law, and all. Not only it is limited to law, we can also propose interdisciplinary MOOC courses. So thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for giving me this platform to learn, to listen to people, those who have immense experience in MOOC courses. And thank you, Jasleen ma'am, for sharing all your different experiences, life experiences. It not only helped us to give us a platform to develop professionally, but also professionally as a human. So you gave a personal touch to it. So thank you so much for everything, sir. Thank you. Thank you We're so honored. much. We're honored. Thank you so much, Jigar. Thanks for sharing such good words with us. Thank you. Thank We're you, honored. Punyasri. Thank you so much. Yes, any other participants? Will you If wind up in 5 minutes? Yes, if yes. I may, Yeah. Yes, yes. this is Dr. Irmala from Surat Law College. I'm a principal in charge. Ma'am, I have attended many MOOC courses, appeared for tests, got certificates, but that making of MOOC entire pathology has been clear only in this course. And one more thing I appreciate that you have brought the human element very, vibrant in the entire course. Plus, the discipline with which you both conducted this course started on time, ended on time. All resource persons were experts. So, you made my dream come, into a reality that even we can go and Oh, cooperate with you for more. Thank you so much, ma'am. Thank you, so doctor. honored, ma'am. So honored. Thank you so much. So always stay with us. Have faith. We'll keep on doing better and better every time. Thank you so much. Honored. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, any other participants? This program, these programs are MOOC for all the teachers, so that we are creating another MOOC. Yeah. Yes, any other participants? Alpesh sir, I think best part of this Yes. course is that जो हम लोग सोच रहे थे और achieve कर पाए because we are perhaps successful in making all the teams come on the scene. Producers आए, e-content developers आए, MOOC experts आए. So Yeah, I from think different yes, yes, yes. subjects, from all the regions, from law, economics, sociology, and corporate, there's the commerce. So best part की बहुत अच्छा experience share हुआ सबकी field का. और जैसे MOOC के behind the scenes क्या होता है, MOOC के front of scene हम सब कुछ कर पाए इसलिए I think what it has given us light to work more on this. Yes, yes. I think बहुत अच्छा like wholesome content generate हुआ है like in this Yes, week. yes.
प्रॉपरली ए टू Yes. जेड आई थिंक कुछ बचा नहीं, आई वुड से हाँ, मैंने गुड लाइक। जब बच्चन सर आपका एक बार सर को बोला, मैंने कहा सर ने बोला एकदम से, because मैंने कहा ना एकदम से ग्राउंडेड कर देंगे हर चीज को. He will like to tell the basic realities of the course. No doubt, if I say good things कि आप करो, आप बनाओ, ऐसा हो जाता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा हम मिसगाइड भी कर देंगे, because एक्सपीरियंस जैसे हमें बड़े कहते हैं ना कि आप वो बड़े देख चुके होते हैं जिन्होंने गलत किया है, इसलिए कहाँ गलती थी, कहाँ ठीक करनी है, तो हम भुगत चुके हैं. अगर हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि ध्यान रखेगा, तो वो भुगतेंगे नहीं. इसलिए बेस्ट पार्ट हमने ये चीज कवर, बेस्ट मुझे लगता है सबका सुन के अच्छा लग रहा है कि thankfully we have been able to cover challenges which they might face while making notes, और आप पहले उसके एग्जैक्टली। लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं चीजों को handle. एक्चुअली यस मैम, एक्चुअली पार्टिसिपेंट के आई वुड से 15-20 साल बचा लिए, अगर उन्होंने ठीक से सुना है। 15-20 साल Yes, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि यस ऑलमोस्ट एक एक्सपीरियंस के बाद ही आता है, ऐसा नहीं कि आप चले गए और जी बिल्कुल सब्जेक्ट एक्सपर्ट, द बिल्कुल मीनिंग कुछ वर्ड मीनिंग है उसका, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल चार चार बिल्कुल. 5 साल से पढ़ा रहा हूँ एंड देन मुझे मूक बनाना है। सो इट विल टेक टाइम, थोड़े बाल से पे तो जाने ठीक है. पड़ेंगे एंड देन वी विल डू। और आई Good थिंक evening, कि everyone. नाचुलिया के हमेशा yes yes यस please कविता कविता, please. यस कविता, Good कविता। evening, everyone. I hope I'm Good audible evening. to all. यस यस यस। Yes, Yes, ma'am. fairly So, audible. first of all, I would like to thank Kalpesh sir कि आपने मुझे हर इवेंट का पार्ट बनाया है, and I learned so many things. Seriously, being a research scholar शायद इतना opportunity ना किसी को मिले, but I am privileged कि मेरे को ये privilege मिल रहा है. और थैंकफुल टू आई एम रियली थैंकफुल टू जसलीन मैम कि मैं उनकी स्कॉलर हूँ, ये तो चलो अलग से प्रिविलेज है ही. ऑल्दो आई एम वर्किंग विद हर एज अ टीचिंग असिस्टेंट इन सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर मूक, and this gave me so many experiences, including how to work as a the person who is handling all those things जो कि शायद और किसी प्लेटफॉर्म्स पे सीखना बहुत मुश्किल है. And also I am equally grateful to Chandan sir. I remember I went to him for get trained to play the role of teaching assistant, and इन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही treated me like that. एंड आई क्लियरली रिमेम्बर मैं फर्स्ट टाइम जब ट्रेनिंग लेकर जब वापस आई, मैं बिल्कुल बिगनिंग का पार्ट ही एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया, एंड आई अगेन कॉल्ड हिम कि सर मैं फिर से भूल गई हूँ, एंड ही अगेन टोल्ड मी सेम थिंग्स. उन्होंने मुझे फिर से वही चीज़ें दोबारा से इतना पोलाइट वे में और इतना अच्छे से समझाया. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि बहुत अलग एक्सपीरियंस से मुझे नए नए रोल सीखने को मिल रहे हैं, बहुत ऐसी वंडरफुल चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर शायद I would not be able to learn. So I am grateful to everyone. Thank you, everyone. Thank you for this informative Thank and you Kavita, and wonderful one thing sessions. about your participants, no, ये जो मैंने इसलिए शेयर करी हूँ, गेन आपको भी लोगों की जरूरत है, आप अपने रखिए कि कौन आपकी, दे आर माय आर्म्स इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस. तो 4-5 साल कोर्स चल रहा है, तो उसमें 2-3 बार मेरी लाइफ और क्राइसिस वाला टाइम बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट एंड देन यू नो सम सर्जरी एंड ऑल, उस टाइम पे और अभी तक चंदन जी और कविता, ये दोनों को मुझे महीने बाद लगता पता कि ये हुआ था, उन्होंने सॉल्व कर लिया. सो द रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड द टेक्निकल असिस्टेंट जो इस मूव में होते हैं, they should be those people who hold your hand and make you walk through. So they have done a lot of things which I should have done, but I could not do in time because I had some crisis on my side. But I don't know how did everything on my behalf. So एक उसके लिए faith चाहिए होता है. Kavita is the only person in the world who shares all my email IDs and passwords. All my email IDs and passwords. It is not that my personal one, my professional one, everything which I know about my password. And now this is about the faith she has earned. And this is the faith which has made me come through for the 5th repetition of the course. तो एक जो म्यूचुअल फेथ है ना, वो कहीं ना कहीं आप देखिए कहाँ पर किससे डेवलप होता है, ताकि और चरण जी ऐसे हैं कि अगर कम्युनिकेशन सी सी से जो मेल्स आती है वो फॉलो करनी बहुत जरूरी हुई है फॉर ऑल ऑफ अस व्हेन वी डेवलप द मूव, या चाहे हम कुछ भी करें, तो वो जो स्वयं से मुख की मिला रही है, अगर मैं मिस करी चंदन कॉल कर रहे हैं, अगर मैंने हरी चंदन सर उनको कविता का कॉल कर रहे हैं, कविता मतलब दे आर ट्राइंग एवरी बेस्ट पॉसिबल थिंग टू कांटेक्ट मी, चाहे व्हाट्सएप, चाहे मैसेज, चाहे कॉल. दिस इज द रोल दो एक जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का रिस्पांसिबिलिटी, दिस इज द प्रोड्यूसर एंड टेक्निकल असिस्टेंट. अगर मैं देखिए फेस तो आ जाए ना पॉपुलर, तो मैं भी में मेरा अगर मुंह है मैं डीटीएच बना पॉपुलर तो मैं हो गई हूँ.
I think not even one person recognize Chandan sir, but the whole success, या one person know कि कविता सहारन का फेस क्या है, but ये दो लोग वो हैं जो मेरी सक्सेस का रीजन है. So the role of technical assistant and producers are actually, it is totally indispensable for the principal investigate also. तो अगर आप academically बहुत strong है, हम हो सकते हैं. Strong तो कोई नहीं होता, हाँ, we can good learns. But at the end and in the beginning, these two people are the most important pillars on the MOOC stand. So I again suggest आप हमेशा इनको मिलकर डिसाइड कर कर इन लोगों के बारे में सोचकर फिर मुख्य कंटेंट बनाइएगा. It's a teamwork. And Kavita, thank you for being such a brilliant technical assistant. Chandan sir भी appreciate करते हो कि you are a very brilliant child. We are proud of you. Yes. Thank you, ma'am. It's all because of the supportive nature you all show. So it's all because of that. You well deserve everything. Well Thank you, deserve ma'am. Thank everything. you so much. अमित भी बहुत या जैसे कुछ सुन रहे होंगे पार्टिसिपेंट्स. एक सर ने कल बात डॉक्टर की, रवि सर ने, वो भी बड़ी जरूरी बात की वो ध्यान में आई जब उन्होंने कहा कि कुछ बोलते अच्छा नहीं है, कुछ लिखते अच्छा नहीं है ना. तो उसका एक चंदन सर ने वही बात बोली है. मैं उसको थोड़ा और रिलेट कर देती हूँ जस्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ एवरीवन. सपोज यू आर अ गुड राइटर, यू हैव गुड रिसर्च स्किल्स. से अमित के पास बहुत जबरदस्त स्किल है. अमित ने मुझे आई स्टिल रिमेंबर 7, मैंने वो जब उसको टर्निंग चेक किया था तो 700 वर्ड का था जो अमित ने दिया. मतलब when you count the word, it is not grammar, it is only English vocab, जो वर्ड सामने आते हैं. तो बड़ा अच्छा, जैसे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, they can be content writers, है ना. And those who speak, they can be others. We have a raised hand. Dr. Rita Moni, please. Yeah, Dr. Rita followed by Moni, and then we'll close after this. Yes, Dr. Rita. Good evening, everyone. I sincerely thank Kalpesh sir for organizing this FTP on MOOC programs. Sir, trust me, every session was insightful and engaging, and every speaker delivered content of the highest standard. No doubt we learned so much about MOOC related concepts and their practical applications. And Jasleen ma'am, a special thanks to you. You were present throughout the course and provided us with valuable guidance and information, ma'am, making this learning experience even more enriching. I indeed once again thanks Kalpesh sir. Sir, we would love to attend such sessions in future. Please do keep us posting such FDPs or any capacity development programs. Jasleen ma'am, a special thanks to you. Thank you. We are so honored. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Yes, last Moni Gowda. Yes, Moni. Yes. My name is Dr. Samutla Gowda, and I am attending. Actually, ma'am, I am the part and parcel of corporate SARS all program, and most of the program I am attending SARS on FTP and capacity building. And I think, ma'am, I don't have any idea about the MOOC, but this program, I think 80% concept is clear about. And thank you, sir, and thank you, Justin ma'am, and your ma'am. Your approach is so good. Justin ma'am, approach is so good. So thank you, and we really wanted to attend like this type of program every whenever there will come. And thank you very much, sir. Thank you. All the organizer of the. We'll keep you posted. Thank you. Thank you so much. Thank you. We'll keep you posted about everything, every element. Thank you so much. We're on it. Yes, Dr. Shyamali Mukherjee. ये हमारा MOOC क्या? At the outset, I would like to wish Happy Teachers' Day to all the teachers present here, and we are really grateful to both of you for such a great hand-holding that you people have make it possible for us. It was a really
very good hand holding from your side, and really it was amazing session, and you have chosen fantastic, excellent resource person for us. Thank you so much. We are grateful. Thank you, Dr. Shamli. Thank you so much. We're honored with the words. Thank you so much. Two big bucks to all of you for us. We encourage and inspired more. Thank you. So, sir, I don't think we have any more hand raised, so we should conclude then. Yes. So I just will come up the name. We are like having small open online courses. Sook. It's MOOC. So That's a wonderful thing, sir. For those shuru is paper, so let's start the yes. entrepreneurship We are on this reaching to now. some masses. Yes. Yes, Amit, over to you. Though I don't know why people are not speaking, but must mention that there are so many messages and compliments pouring in the Yes. chat box. Yes. So many compliments. Uncountable and so beautiful words. Yes, true. So I'd like to thank again the organizers and the participants for making this event success. And there can't be a better day than this Teachers' Day to conclude this capacity building program on MOOC and to learn from this 7 days capacity building program and to pass on the learning and expertise through these e-content and the development of MOOCs. So I once again thank all of you, all the resource persons as well, for sharing their experiences and expertise. So thank you so much, everyone. I think we will meet again for another CBP or FDP by Kalpesh sir and Jasleen ma'am together. So thank you so much once again. Thank, Thank you Thank so you, much. Chandra. Thank you, Amit. Thank you, thank you, Kalpesh, Thank Sanjana you sir. ji. so Thank you, much, Shubham. Thank ma'am. you to all Thank you, sir. participants. Lots of regards. Happy Teachers' Day again. God bless you. Make the day. Bye bye. Thank Take you. care. Bye bye. Bye, ma'am. Take Thanks. care. Bye.